آج کا آپ نے جو اجتماع کیا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم اور ٹائملی ریویو ہے پاکستان میں خواتین کے حوالے سے جتنا کام ہوا ہے اور جتنی پروگریس اچیو ہوئی ہے اور جو نہیں ہوا اچیو، اس کے بارے میں تشویش کا اظہار ہوا۔ مجھے اب بیجنگ 1995 تقریباً ایک صدی پیچھے لگتا ہے۔ اب مجھے تقریباً اس دور کی یادیں بھی اب مٹنی شروع ہو گئی، کیونکہ ایک طرف تو یہ ایک بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھا کہ انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ورلڈ کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز کی لیول پہ، اور پاکستان میں اس کی نہ صرف اویئرنیس تھی کہ یہ ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان نے ایک بھرپور اس میں حصہ بھی لیا۔ کچھ یادیں میرے ذہن میں اس کی رہ گئی ہیں اور وہ میں ایک دو باتیں کر کے پھر ٹاپک پہ آتی ہوں۔ سلمہ نے بڑی تفصیل سے ہمیں ان دنوں کے حالات بتائے اور وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اس وقت، اور پس پردہ کیا کیا تھا جس کا ہمیں شاید اس وقت علم نہیں تھا۔ لیکن ایک دو چیزیں مور امیوزنگ دین اینی تھنگ ایلس۔ جب وہاں بیجنگ میں ہم تھے تو تین اس کی جو یادیں، میں بیٹھی تھی وہاں اور سوچ رہی تھی کہ کیا بات مجھے اس وقت کی یاد ہے۔ تین چیزیں یاد تھیں۔ نمبر ایک، پاکستان کی رپورٹ جو وہاں پیش کی گئی، اس پہ ایک چیپی لگی ہوئی تھی کہ the government of Pakistan doesn't necessarily share all the opinions expressed in this report۔ حالانکہ یہ سرکاری رپورٹ تھی، جس سے یہ ظاہر تھا۔ I have that copy still۔ اچھا، اور وہ ایک ٹرالی پہ وہ لے کے جا رہے تھے، تو میں نے ایک دم جو اٹھائی کہ میرے پاس رپورٹ کی کاپی نہیں تھی، تو I was confronted with this چیپی والی کاپی۔ اچھا خیر، وہ تو ایک جو بات ہوئی سو ہوئی، اور وہ مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ وہ کس کی کارکردگی تھی۔ دوسری چیز جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایک ایسی ڈیلیگیشن تھی جس میں سرکاری طور پر ڈیلیگیٹس NGO سے تھے، اینڈ the person who was heading the delegation was Taira Mazharyan۔ She was a part of that delegation۔ She was part of that delegation۔ مجھے یہ یاد ہے، سب جو آنٹی طاہرہ کو جانتے ہیں ان کو یہ اس بات کا علم ہے کہ جو چیز ان کے ایک دم اٹینشن کو آ جائے اور وہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا ہے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا دنیا میں۔ تو آنٹی طاہرہ's hand would go up like this and she would stand up and make a comment, and one of the bureaucrats who used to be, I think we all know him but I won't name him، وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، and I used to see him pulling her shirt کہ بیٹھتے ہیں۔ پھر وہی جو بیوروکریٹ تھا، تیسری بات جو مجھے بات یاد ہے، میں پاکستان کی ڈیلیگیشن میں نہیں تھی اور میں ایز این NGO گئی تھی وہاں فار دا پلینری، بیکاز I was chosen by all the NGOs to represent the NGOs in the plenary۔ میں نے وہاں جو اسٹیٹمنٹ پڑھی NGOs کی طرف سے، ظاہر ہے اس میں بہت سے کنسرنز ایسے تھے جو پاکستان کے حوالے سے شاید ریلیونٹ نہ ہوں، کیونکہ وہ تو ایک دنیا کی پوری NGOs کے کنسرنز اس اسٹیٹمنٹ میں تھے۔ اس میں ایک جینڈر اورینٹیشن پہ بھی تھا۔ تو یہ صاحب میرے پاس آئے بڑے غصے میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پاکستان کی ناک کٹوا دی، آپ نے اس موضوع پہ بات کیوں کی ہے؟ آپ کو میرا بھی پتا ہے کہ جو میں نے ان کے ساتھ کی وہ اس کی بھی عینی شاہد آنٹی طاہرہ ہی ہے۔ مگر میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دیر واز سو مچ گوئنگ آن دا سائڈ لائنس آف دیٹ کانفرنس، کہ پاکستان میں بہت سی تبدیلی آئی تھی اور بہت سی چیزیں نئی ہوئی تھیں، مگر جو سلمہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا قابض ہے اس وقت بھی کہ وہ ہمارے لیے ایک مشکل پیدا اب بھی کر رہا ہے اسی طرح۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں جب بات کرتی ہوں کسی پبلک فورم پہ تو کئی لوگوں کو یہ بڑی شکایت ہوتی ہے کہ آپ تو بڑی بری پکچر پیش کرتی ہیں اور آپ ہمیشہ نیگیٹو بات کرتی ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ مگر میں کیا کروں، مجھے اگر کوئی بلائے گا بولنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ یا تو عورتوں کے حوالے سے بلائے گا یا ہیومن رائٹس کے یا قانون کے حوالے سے بلائے گا۔ اب ان تینوں چیزوں میں کتنی پازیٹیو ہو سکتی ہوں پاکستان کے حوالے سے؟ میں certainly I am a very realistic person on the one hand, on the other مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو
फॉल्स कंप्लेसेंसी में मुब्तला रखने का। हमारा मकसद अपनी तशवीश के इजहार का ना किसी की क्रिटिसिज्म होता है, ना किसी इस नीयत से किया जाता है कि पाकिस्तान की इमेज खराब हो। हमारा मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में अगर जो रियलिटीज़ हैं आप उनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो आप उन रियलिटीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे, और ये हमारा सबका एक कलेक्टिव मकसद है। इसलिए जो डार्क साइड्स ऑफ द प्रॉब्लम हैं उनको एम्फसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं हुई होंगी, लेकिन वो पॉजिटिव डेवलपमेंट किसी की जिसको कहते हैं ना कंसेशन नहीं है टू वुमेन और टू एनीबडी एल्स, दैट हैड टू हैपन, दैट इज अ गिवन, दैट इज एक्सपेक्टेड। तो उसका सरसरी जिक्र करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उन चीज़ों पे करना है कि जहाँ हमें तशवीश है, ताकि हम आगे जाने के काबिल हो सकें। दूसरा जो मुसीबत होती है नेगेटिव प्रॉब्लम्स की, वो हमारे दोस्त भी पैदा कर देते हैं, बनी जैसे, जो मुझे हमेशा टॉपिक ही ऐसा देती है, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती। अब मुझे बताएं कि जो दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं उसके बारे में मैं कितनी पॉजिटिव बात कर सकती हूँ। मगर स्टार्टिंग विद डेमोक्रेसी, जमहूरियत का मैं उस पर तो ज़्यादा लंबा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ बैठे हुए लोगों को। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में, कि जमहूरियत जो है वो नेसेसरली जेंडर सेंसिटिव नहीं है। जमहूरियत को जेंडर सेंसिटिव करना ज़रूरी है अगर जमहूरियत ने औरतों के लिए भी अफादियत पैदा करनी है। नंबर 1। नंबर 2, जमहूरियत किसी स्टेज का नाम नहीं है। आज हम जमहूरी हो गए हैं, कल हम जमहूरी नहीं थे। जमहूरियत तो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में कब आप ये कह सकते हैं कि हाँ आज हमने बहुत सी जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको फलांगते हुए एक ऐसी लेवल ऑफ डेमोक्रेसी अचीव कर ली है कि वी कैन नाउ से कि आवर पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इज ओवर। ये ज़रूर हो सकता है कि वो एक स्टेज आ जाए, मगर ये प्रोसेस है जो चलता रहता है। हमारे जैसे मुल्कों में ये कह देना कि जमहूरियत ने तो कभी डिलीवर नहीं किया, ये इसलिए गलत है कि जमहूरियत कभी आई नहीं। आपके यहाँ शायद ट्रांजिशन शुरू हुई हो, लेकिन वो ट्रांजिशन कभी ख़त्म नहीं हुई, और बार बार चूंकि इंटरक्शन हुई तो वो ट्रांजिशन जो है वो ज़ीरो से फिर से शुरू करनी पड़ी। बहुत से ऐसे दुनिया में ममालिक हैं हु आर इन स्टेट ऑफ परपेचुअल ट्रांजिशन, यानी 10-10 साल पहले उनकी सिविल हुकूमतें रिस्टोर हो गई, लेकिन वो अभी अपनी कोताहियों को, अपनी कमज़ोरियों को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि जी हम तो अभी ट्रांजिशन में। या ऐसे ममालिक हैं जैसे थाईलैंड है, जहाँ पर एक तासुर ये मिला कि 17 साल से शायद फौजी कू नहीं हुआ, तो ये अब अपनी ट्रांजिशन से निकल आए हैं और अब नाउ दे आर एट द स्टेज ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अंडर डेमोक्रेसी। उसकी हकीकत आपने देख ली। हमारे यहाँ भी शायद यही एक सूरत हाल है। हम जब जमहूरियत की बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जमहूरियत तो वो फिजा पैदा करती है जिसमें आपको मौके ज़्यादा मिलते हैं अपनी बात करने के और कुछ सक्सेस अचीव करने के। लेकिन जमहूरियत आ जाने से ज़रूरी नहीं कि औरतों के हकूक़ जो हैं वो पूरे हो जाएंगे और वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। और यही सूरत हाल इंसानी हकूक़ की भी है। जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का रिश्ता ज़रूर है, लेकिन वो रिश्ता उस फिज़ा में है जो जमहूरियत पैदा करती है। आप उस फिज़ा को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उन मौके का क्या इस्तेमाल करते हैं, वो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है, यानी सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स पर और उन इंडिविजुअल्स पर जो डेमोक्रेसी से कुछ हासिल करना चाहते हैं। देखिए, इससे ज़्यादा आपकी उन इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट है जो कि जमहूरियत के पहले स्टेज में मौजूद होती हैं। उनका बहुत बड़ा रोल होता है जमहूरियत को आगे ले जाने का। आपने अपनी अगर जुडिशल हिस्ट्री को फॉर इंस्टेंस देखा हो तो आपको एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान में बहुत से सियासी
सवालात ऐसे थे जो अदालत तक गए। अमूमन कई मुल्कों में अदालतों ने ये कहकर ऐसे सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये उन अदारों से इसका ताल्लुक है जो जमहूरियत के अंदर हमारे पैरेलल अदारे हैं, जैसे मुकन्ना है, पार्लियामेंट है, सियासी जो बातें हैं वो उसका जवाब देना, उनको डील करना पार्लियामेंट का काम है। लेकिन ऐसे भी ममालिक हैं, और ये कोई गलत भी नहीं है, मैं समझती हूँ कि समटाइम्स जुडिशरीज आर कॉल्ड अपॉन टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच हैव अ डुअल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट भी है, सियासी एस्पेक्ट भी है। हमारे यहाँ जब जुडिशरी ने ऐसे सवालात का जवाब देने की कोशिश की तो उनकी जिस तरीके से उन्होंने उसके साथ डील किया, उससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि जमहूरियत की प्रमोशन के लिए हमारी जुडिशरी ने कोई ऐसा खातिर खा काम नहीं किया, बल्कि जमहूरियत को डीलेजिटिमाइज करने में, डिस्क्रेडिट करने में और अंडरमाइन करने में सियासी अदालती फैसलों का बहुत बड़ा हाथ है। यहां आप ये जो दो लफ्ज हमारे टॉपिक में हैं, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती, इसका लिंक देख सकते हैं। कानून की बालादस्ती एक लफ्ज ऐसा है जो हर एक इस्तेमाल करता है बगैर इस चीज को पर ध्यान दिए कि कानून की बालादस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कानून की बालादस्ती की एस्पिरेशन रखें जो कि अस खुद एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेशन है। देखिए, जब जिना का कानून था या और दूसरे इस्तेसाली कवानीन किसी मुल्क में और कौम में बनते हैं और मौजूद होते हैं, तो आप उन कवानीन को फॉलो करने और उसकी बालादस्ती के लिए काम करने को ये एक पॉजिटिव एलिमेंट नहीं समझते। तो पहली चीज तो यह है कि इस चीज को समझें कि बालादस्ती का हक किस किस्म के कानून को है। बालादस्ती का हक उस किस्म के कानून को है जिसकी फोर्स लेजिटिमेट, जिसकी सोर्स लेजिटिमेट हो, जो कुछ ऐसी इकदार और वैल्यूज पे मबनी हो जो कि यूनिवर्सल सेंस ऑफ जस्टिस की तरफ लेकर जाती हूँ, जो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी हो, और जो सोसाइटी में किसी अच्छी रवायत या कदर को प्रमोट करने के लिए हो या किसी बुरी रवायत या कदर की डिस्करेजमेंट के लिए हो या एलिमिनेशन। ये वो कानून है जो रूल ऑफ लॉ का एक हिस्सा होता है। हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती का नाम लेने वाले हमेशा इसको इस ज़िमन में इस्तेमाल करते हैं कि वो कवानीन जो आर्बिट्ररीनेस, अथॉरिटेरियन कंट्रोल सोसाइटी पर भी और सियासत पर भी इस्टेब्लिश करते हैं, उनकी बालादस्ती को इम्पोज करने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए हमारे लिए ये एक स्ट्रगल जो है कानून की बालादस्ती के लिए, वो दो पहलू रखती है। नंबर एक, ये के कवानीन वो हों जो इंसानियत पर मबनी हो, इंसानी हकूक़ की वैल्यूज पे मबनी हो और जस्टिस पे मबनी हो। नंबर दो ये कि फिर आप उनकी बालादस्ती भी हो। तो ये दो जो लेवल्स है जिस पे हम लड़ रहे हैं, ये इस लड़ाई को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से हम जब इंस्टीट्यूशंस का हाल देखते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती एक ऐसी एस्पिरेशन है जो हरगिज इलेजिटिमेट और अनवैलिड नहीं है, इनवैलिड नहीं है, लेकिन उसको अचीव करना एक दिन का काम नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी तरफ जाने की जो अर्जेंसी है वो ये दिखाती है कि आपको कदम उठाने की उस डायरेक्शन में अशद जरूरत है और उसकी तरफ आपने जाना है। जब हम डिस्कोर्स शुरू करते हैं तो एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर आपको एक कंफ्यूजन पैदा कर दी जाती है और रेड हेरिंग्स शो कर दी जाती है, ताकि वो जो डिस्कोर्स है वो अपनी एक
जो लॉजिकल कंक्लूजन है उस तक पहुंच ही ना पाए, और आप ऐसे डिबेट्स में शामिल वो हो जाएं, आपको वो कर दिया जाए, डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए और डाइवर्ट कर दिया जाए कि आप फिर एक गुत्थी को सुलझाने के बजाय उसको और उलझाते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कवानीन आए जिसके ऊपर स्ट्रगल्स हुए, खवातीन की तरफ से भी और दूसरी सोशल मूवमेंट्स की तरफ से भी, लेकिन हम अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहां नंबर एक हम इस हकीकत को पहचान सकें कि कानून की बालादस्ती का असल मकसद क्या है और मतलब क्या है, और नंबर दो ये कि हम ऐसा एक लीगल फ्रेमवर्क नेशनल लेवल पर हासिल कर सकें जिसकी बालादस्ती के लिए लड़ने में हमें खुशी हो। जब हम आईने पाकिस्तान देखते हैं, और उसका जिक्र सुबह भी हुआ, एक हमारी दोस्त ने कहा कि आईने पाकिस्तान में एक औरतों के हवाले से जो शिक है आर्टिकल 25, मैं समझती हूँ बहुत अच्छी शिक है, और शायद बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त के बने हुए, अब नई कॉन्स्टिट्यूशन में तो ज़्यादा अच्छी शिकें आ गई हैं, लेकिन जो उस वक्त के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें एक रेवोल्यूशनरी शिक गिनी जाती है, स्पेशली विद रिगार्ड टू दैट अफर्मेटिव एक्शन बिट दैट हैज बीन एडेड टू आर्टिकल 25, जो कि मैं यहाँ करेक्ट कर दूँ कि किसी ने कहा कि वो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन की इजाज़त है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है, तो स्टेट में स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक अच्छी प्रोविजन थी, लेकिन आपने जैसे देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो लीगल फ्रेमवर्क है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से आता है उसको पोल्यूट कर दिया गया, और बहुत से हमारे कवानीन जो बने वो इसलिए मैं समझती हूँ इस काबिल नहीं है कि उनको कानून की बालादस्ती का एक हिस्सा माना जाए, क्योंकि दे आर आइदर टेंटेड बाय डिस्क्रिमिनेशन और पोल्यूटेड बाय एक्सप्लॉयटेशन, कि उनके जरिए से इम्तियाज लोगों के दरमियान किया जा सकता है और उन्हीं के जरिए से लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जुडिशरी है उसका रोल अब तक हमने ये नहीं देखा, डिस्पाइट द सुओ मोटो अजीनोमोटो, कि जो गरीब है उसके हकूक के लिए ऐसी जजमेंट्स आए जो प्रेसिडेंट बने और जो कानून की खराबियां या कमजोरियां हैं उनको ओवरकम किया जाए। देखिए ये भी हकीकत है कि हर चीज के लिए आपको मुकन्ना के पास जाके और हर चीज के लिए कानून बदलवाने की जरूरत नहीं होती है। कई दफा अगर बहुत ज्यादा वो मिलिशियस या विशियस कानून नहीं है तो उसके अंदर खूब गुंजाइश होती है कि अदालतों के जरिए से उसको डेवलप कर दिया जाए। मैं ये समझती हूँ कि जुडिशल एक्टिविज्म पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जमहूरियत को अगर फरोग देना है और मेंटेन करना है तो हर इंस्टीट्यूशन बशमूल अदलिया के अपनी हदूद को पहचाने, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस हद से आगे ना जाऊं, उसके हद से आगे ना जाने का कॉन्सिक्वेंस ही होगा कि दूसरी इंस्टीट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि उनके ऊपर बोझ पड़ेगा और उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और फिर वो खड़ी होंगी। आज के हालात जो आप देख रहे हैं, जब भी कोई पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही होती है तो आम लोग ये कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये फैसला करे। भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसके दो नुकसान हैं। नंबर एक ये कि आप जब बहुत ज्यादा बर्डन डाल देंगे एक इंस्टीट्यूशन पर तो वो अपना काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकेगी। नंबर दो ये कि आप जब एक्सपेक्टेशंस हर किस्म की एक इंस्टीट्यूशन को देते हैं और उसको ये मौका देते हैं कि वो अपने आप को अक्ले कुल समझने लगे, तो फिर आप दूसरी इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ जो है वो इस चीज में नहीं है कि वो खुद कुछ करती हैं कि नहीं, क्योंकि वो नहीं करती, लेकिन जब तक उनके ऊपर ये बोझ नहीं पड़ेगा तो वो भी पास द बक नहीं कर सकती। मैंने पार्लियामेंटेरियंस को भी सुना है, वो जी क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। भाई साहब, आपने एक पॉलिटिकल आपके सामने मसला आया, आप मर्डर्स भी जुडिशरी करवाना शुरू हो गए। तो ये चीजें
रूल ऑफ लॉ या जमहूरियत दोनों को एक ऐसा नुकसान देती हैं जो कि नाकाबिल तलाफी हो जाता है। एक ऐसा स्टेज भी आता है कि फिर आपको उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि आपकी फिर से कभी ट्रांजिशन शुरू भी होगी, क्योंकि आपके यहाँ जो पॉपुलेशन है उसका माइंडसेट भी चेंज हो रहा होता है। सिर्फ लीडर्स और इंस्टीट्यूशन दुरुस्त है कि इनका सब बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सारी गलती इनकी नहीं होती। एहतसाब अगर लीडर्स का होता है या इंस्टीट्यूशंस का होता है तो पब्लिक माइंडसेट का भी होना चाहिए। और कोई ऐसा वक्त भी किसी कौम की जिंदगी में आता है कि आम पब्लिक, जिसको हम एक विक्टिम समझते हैं, उसको भी थोड़ी सी खरी खरी सुनाने की जरूरत होती है। और जमहूरियत के लिए अगर आपने सपोर्ट बनाना है तो उनको उनके माइंडसेट को दुरुस्त करना भी जरूरी है। क्या हम में से कोई जो यहां बैठा होगा सियासी जमातों के किरदार से पूरे तरीके से मुतमईन कभी भी नहीं हुए हैं? वी हैव नो इल्यूजन अबाउट हिम। लेकिन जिस वक्त मिलिट्री कू आता है तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फोर्सेस से बहुत डिसइल्यूजन भी होते हैं, उनके हाथों पिटे हुए भी होते हैं और उनसे बहुत नालाम भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल सुकड़ जाता है और एक खौफ हम पर तारी हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम सियासी जमातों के हक में शायद ना हो इंडिविजुअली, मगर हम सियासी प्रोसेस के हक में हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत या कानून की बालादस्ती एक सियासी प्रोसेस के बगैर नहीं आ सकती, और हमारी जितनी वीकनेसेस हैं सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, वो दूर नहीं हो सकती जब तक कि एक सियासी प्रोसेस ना चले। लेकिन ये हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हम वो सियासी प्रोसेस जमातों के बगैर नहीं चला सकते, और जो जमातें आपके पास मौजूद हैं सियासी प्रोसेस उन्हीं के जरिए से चलेगा। ये आपकी एज अ पॉपुलेशन जिम्मेदारी है कि आप उनके कॉर्नर्स कट करें ओवर द ईयर्स। आप एहतसाब और ट्रांसपेरेंसी के अमल को, जो एक पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है कैसल की, उसमें डालें। अगर लोगों में डिमांड नहीं होगी, एक अर्ज नहीं होगी अकाउंटेबिलिटी की, तो फिर कोई अदारा, कोई इंडिविजुअल या कोई सियासी जमात इस चीज से नहीं डरेगी कि हमने कोई कदम उठाया है, चाहे वो करप्शन पे मबनी है या आर्बिट्रेरीनेस पे मबनी है, और हमारी अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब नहीं होगा लोगों की तरफ से, तो उनको कोई डर और खौफ नहीं होगा। वो फिर वही काम करेंगे जो उनके लिए कन्वीनियंट है। अगर इस मुल्क में एहतसाब का जरिया यही होना है, जो कि हमारे बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि जी ये तो सियासी जमातें तो ठीक काम करती नहीं, इससे फौज है। भाई साहब, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो ये ना सिर्फ सियासी तौर पे एक गलत चीज है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये हमारी कौम की बेइज्जती है, क्योंकि आप उनको डिनाई कर रहे हैं वो हक। आप कहते हैं जी इलेक्शन तो हो गए हैं ना, इलेक्शन करना एक चीज है और पीरियोडिकल और रेगुलर इलेक्शंस करना दूसरी चीज है। पाकिस्तान अगर सिर्फ इलेक्शन से जमहूरियत आई होती तो पाकिस्तान में तो जमहूरियत वहां तक गई होती। यानी 2 इलेक्शंस में आपने 6 करा लिए हैं उस एक पीरियड में, हर 2-2 साल आप इलेक्शन कराते रहे। The main thing is not to bring government in power, but to throw it out of power, and that right has been denied to the people of Pakistan. That right has not only been denied to them through political manipulation. This is a denial of the rule of law, because you have a constitution that prescribes the way that elections and democracy will progress in this country. So you deny that right, you violate the rule of law, and then you say that it is the political parties that are to be blamed. They, of course, their shoulders should be very heavy with the burden of blame. But can we say that the blame only lies there? I will use the words of somebody who influenced my life a great deal and my thinking on politics. कि जैसी कौम होती है ना वैसा लीडर होता है। ये लीडर आपका रिफ्लेक्शन है, इसलिए इनमें जो कोताही आप देखते हैं वो आपको मजबूर करना चाहिए उसको कि वो आप अपने अंदर रखें। ये कोई हम बाहर से नहीं लेके आए हुए। अगर करप्शन है तो वो हमारी कौमी साइकी में है,
اگر جھوٹ ہے تو وہ ہماری قومی سائیکی میں ہے. اگر بے شرمی سے اور بلیٹنٹلی آپ آربیٹری اقدامات کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کی سائیکی میں ہے. جس شخص کو پولیس والا ہاتھ دے کر روکتا ہے وہ اس چیز کو اپنی بے عزتی جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے روکا گیا ہے تو وہ آپ کی اپنی سائیکی میں. آج کتنے لوگ ہیں جو کیو میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی شکل پہ ایک شرمندگی اور ڈیپریویشن نہیں ہوتی کہ میں اتنا بڑا شخص اور میں کیو میں کھڑا ہوں. یعنی ہمارے اس وقت ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ ایک زمانے میں پنجاب کے ایک منسٹر تھے اور انہوں نے ایک گاڑی کا نمبر لینا تھا اپنی مرضی سے اور وہ ڈینائی کر دی گئی ان کو, تو انہوں نے یوں فائل پھینکی اور انہوں نے کہا کہ ایس منسٹری کا کی فائدہ ہے کہ اپنی مرضی کا نمبر بھی نہ لے سکو. اگر یہ سائیکالوجی رہے گی تو یہاں نہ جمہوریت چلے گی اور نہ قانون کی بالادستی کے لیے کوئی عزت اور کوئی حکومت ہوگی. بہت شکریہ.